Okay, so let us discuss few things that are remaining in the topic. The first one is here regarding your labyrinth seals. Okay, so these seals are fitted. Okay, so that see, I have a lube oil sump over here, right, which is connected to my gear pump. This is the outboard bearing type design. Okay, this is my oil sump, and lube oil will be injected on the bearing, right? This is the lube oil supply. Guys, you can hear me, right? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So why we are providing this labyrinth seals? First of all, this bearing oil is getting injected on your bearings. ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे, on your blower side and your compressor side, the oil is being injected. You don't want this bearing oil to go forward and to your turbine side. Also, you do not want this bearing oil to go to your blower side. ठीक है. One more thing, you don't want your exhaust gas, which is coming and hitting your turbine. You don't want that exhaust gas to come to your oil side. Otherwise, your oil will become black. Okay. So for this purpose, you have provided a labyrinth seal. So it is over here. Okay. And over here. And one labyrinth seal will be on the face of your, it is not shown in this diagram, in this part, between the casing and your impeller here. Okay. So how many labyrinth seals are there? Four. Three, right? Three. Okay. दिस इज वन कंप्लीट यूनिट. हाँ, ये कंप्लीट है, एक सरकमफ्रेंस पे है. ठीक है, सरकमफ्रेंस पे. सो वी हैव थ्री. सरकमफ्रेंस इन द सेंस कि आप अगर hold on, वॉल्यूट केसिंग के पास जो रहता है पूरा एक ही होता है क्या वो? एक ही होता है वो. ठीक है, आई विल ओके। शो यू इट. यू कैन सी हियर, यहाँ पे फिन्स बने हुए हैं कुछ, देख रहा है यहाँ पे. यस सर। ठीक है, दीज आर वन टाइप, ये फिन्स हैं. और ऐसे ही फिन्स आपके कंप्रेसर में भी लगे रहेंगे. ठीक है, और ये दोनों इंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ, like this, if you can see here. Okay, one is your casing side and one is, see, suppose this is your impeller and this is the casing. So just now you see the this part you saw. Okay, ये part आपने देखा, और एक impeller में भी रहेगा, और ये एक दूसरे से engage होंगे, and we will see how it is working. Okay, so अभी तक सही चल रहा है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलो यस guys. सर। ठीक है. So now how it is working is, suppose this is my shaft, and I will make some combs like this. ठीक है, so this is a part of the rotor itself, और ये extended fins हैं. ठीक है, and this is fins of your casing. So what happens is, you will suppose यहाँ से exhaust आ रहा है. ठीक है, this is your turbine. ठीक है, for example, this is your turbine and your exhaust gas is coming actually and going readily, right? But there are chances that exhaust gas might go here also. And on over here, सपोज ये अगर इनबोर्ड बेरिंग है, इनबोर्ड बेरिंग वाला डिजाइन है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका बेरिंग्स रहेगा, इजंट इट? बोलो गाइस. फॉर एग्जांपल दिस इज इनबोर्ड टाइप बेरिंग. ठीक है, जस्ट आपको वर्किंग समझानी है.
उसके बाद कंस्ट्रक्शन बाद में देखेंगे। मान लो इनबोर्ड बेरिंग टाइप वाला कंप्रेसर है ये, तो उसकी बेरिंग अंदर रहती है ना। यस सर। ठीक यस है। सर। सो यू डोंट वांट दिस लूब ऑयल आल्सो टू गो टुवर्ड्स योर टर्बाइन साइड। देन व्हाट हैपेंस इज, इस केसिंग को यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। आपका एक लाइन ऐसे आता है, एंड द एयर इज sent here. Okay, this is air coming from your what you say, volute casing. ठीक है, कंप्रेशन होने के बाद जो एयर जा रहा है, वहां से एक टैपिंग लेके आप एयर की सप्लाई इन दोनों के बीच में दे रहे हो। जब ये एयर यहाँ पे आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये एग्जॉस्ट गैस यहाँ से लीकेज करेगा, ठीक है, फर्स्ट वाले से लीक करके आगे जाएगा, एंड इट विल गो टू अ बिगर एरिया, इट विल एक्सपैंड, एंड व्हेन इट विल एक्सपैंड, इसका एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी विल ड्रॉप डाउन, मतलब प्रेशर विल ड्रॉप डाउन। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ से एयर दिया, और वो एयर प्रिवेंट करेगा इस एग्जॉस्ट गैस को आगे जाने से। ठीक है, सो द प्रेशर ड्रॉप विल टेक प्लेस एज योर कितना बार करे थे जो बॉलीवुड केसिंग से टैपिंग करके हम लोग ला रहे हैं? कंट्रोल एरिया है ना वो? नॉट नॉट कंट्रोल एयर, जो आपका कंप्रेसर डेवलप कर रहा है एयर को। एक मिनट रुको। ओके ओके सर, तो मतलब जितना बार का प्रेशर डेवलप कर रहा है उसका एक टैपिंग लेके हम लोग लैब्रिन सेल के अंदर डाल रहे हैं। करेक्ट। सर एयर डाल क्यों रहे हैं सर? लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। आई डोंट वांट माय एग्जॉस्ट गैस टू कम टुवर्ड्स माय lube oil side, also I do not want my lube oil to go towards my exhaust side, isn't it? तो आप देखोगे, ये मेरा वो वॉल्यूट केसिंग है जहाँ पे एयर है ब्लू कलर का। ठीक है, सपोज दिस इज माय वेयर माय एयर इज गेटिंग स्टोर, यहाँ से होके वो फिर स्कैवेन अपने स्कैवेन manifold एयर कूलर के लिए चली जाती है ना। यहाँ से मैंने एक टैपिंग लिया है, ये देखो यहाँ जा रहा है, एंड इट इज गोइंग। ठीक है, एक लेब्रेन सील यहाँ पे लगी है, एक वहां चला जाएगा, एक आगे लगी हुई है, उसके लिए जाएगा। इज इट क्लियर? और जूम कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। नहीं तो सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसको जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन ये करिए। ब्लोअर साइड है आपका। ब्लोअर विल, व्हेन द कंप्रेसर विल रन, ब्लोअर विल कंप्रेस एयर, प्रेशर इंक्रीज होता है यहाँ पे। ठीक है, दिस प्रेशर इज फेड, एक तो आपको यहाँ पे दे देगा लेब्रेन सील पे। ठीक है, दिस इज इनबोर्ड बेरिंग टाइप, एक बेरिंग ये रही। ठीक है, यहाँ पे लेब्रेन सील लगी हुई है, और एक लेब्रेन सील यहाँ पे लगी हुई है। दूसरा एयर जा रहा है यहाँ पे, वही एयर आगे जा रहा है, और वो इस वाले, ये ब्लू कलर देख रहे हो? यस सर। ठीक है, ये तो एग्जॉस्ट साइड है, ये तो एग्जॉस्ट साइड है, इजंट इट? यू डोंट वांट कि ये एग्जॉस्ट, पहली बात तो आपके लूब ऑयल, इस लूब ऑयल को खराब करे जो आपकी बेरिंग्स पे जा रहा है। ठीक है, और यू डोंट वांट दिस लूब ऑयल आल्सो टू गो टुवर्ड्स टरबाइन साइड। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा कि क्या होता है अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, बाद में। एंड हेयर आल्सो यू वांट कि ये लूब ऑयल मेरा ब्लोअर साइड में ना जाए, एंड यू वांट कि ब्लोअर साइड में जाके ब्लोअर को कंटेमिनेट ना करे। इज इट क्लियर? सर यस सर। ये जो दोनों ग्रीन साइड जो वो है, आपने बताया हम्म। बियरिंग्स, तो इन दोनों के बीच में जो भी स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस हमारा लीव वाल से हम्म, कवर रहेगा। एक मिनट देखो, एक लेबन सील लगी है मेरी, आई विल यूज ग्रीन कलर, ये लगी हुई है। ठीक है, सरकमफ्रेंस में ये पूरा है ना, गोल चक्कर है, सर एक ये यहाँ पे पूरा लगी है। एक, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, ये जो इधर ब्लोअर साइड में लगा है तो पूरा एक ही है ना सर? हाँ एक ही है। देखो मैं आपको अगर कोई फोटो दिखाऊं तो इसका दो तो, और कहाँ पे लगी रहती है सर? दो और कहाँ पे लगी ऐसे ना, रहती है आप लोग? एक्चुअल में, एक मिनट देखो, ये आपको दिख रहा है,
ये पार्ट अच्छा। जिसमें ऐसे टीथ बने हुए हैं कंघी जैसे, है ना, तो हाँ जी। ये है लेब्रेंस सील, और ये पूरा सर्कमफ्रेंस पे रहेगी। ठीक है, ये तो हाफ कट फोटो है एक किसी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का। ठीक है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, बट आप ये सब देख सकते हो, ये सब लेब्रेंस सील है। ठीक है, ताकि आपका लीकेज प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये सर्कुलर में रहेंगी, ऐसा नहीं कि हाफ है, ये पूरा यहाँ पे भी रहेगा, पूरा सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, अगर थोड़ा दिखेगा आपको कि यहाँ पे भी दिख रही है आपको लेबरेंस सील, राइट। तो ये पूरा रिंग आता है एक। ठीक है, छल्ला है पूरा एक तरीके का, समझ रहे हो। हाँ सर। तो ठीक है, वो पूरा ये का देखो पूरा रिप्लेस हो जाता है ना कि नहीं? हाँ हाँ, रिप्लेसेबल रहते हैं ये। ठीक है, ओके दीज सर। आर रिप्लेसेबल लेबरेंस सील्स। ठीक है, सो आप देखो ये पूरा मतलब सर्कुलर है, ऐसे 3D में नहीं बना सकता मैं, लेकिन ये सर्कुलर है। ठीक है ना, पूरा समझ रहे हो ना, पूरे शाफ्ट के सरकमफ्रेंस पे है ये ऐसे टीथ जो सर तो बने हुए ये हैं। दो ही हुआ ना सर, तीसरा कहाँ है सर लेबरेंस? ये पूरा मिला के दो ही हुआ ना सर? ये मैं आपको अभी टर्बोचार्जर दूसरा वाला बता रहा हूँ इस डायग्राम में। आप पहले कंसेप्ट समझो, है ना, पहले कंसेप्ट समझो, उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ पे दो है कहाँ पे तीन है। ठीक है, जो आपके रेडियल रेडियल टर्बोचार्जर रहते हैं ना, जो ऑक्सीजन इंजन के टर्बोचार्जर रहते हैं। ठीक है, हम्म। एक तो TCR होता है, और एक TCA होता है, TCA फॉर मेन इंजन, TCR फॉर ऑक्सीजन इंजन। ठीक है, दोनों में बहुत ही फाइन डिफरेंस है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस एग्जॉस्ट गैस का फ्लो और लैब्रेंस सील्स। यहाँ पे दो ही लैब्रेंस सील्स रहती हैं, एक यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे है। ठीक है, ये टर्बोचार्जर वाला दिखा रहा हूँ डायग्राम, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में घुसेंगे। मेरा मेन फंडा क्या है लैब्रेंस सील को प्रोवाइड करने का, आई डोंट वांट दिस लूप ऑयल टू गो टुवर्ड्स माय ब्लोअर साइड। ठीक है, नहीं तो वो यहाँ से निकल के स्कैवेन स्पेस को भी खराब करेगा और ब्लोअर को भी खराब करेगा। ऑल्सो आई डोंट वांट दिस लूप ऑयल टू गो टुवर्ड्स माय एग्जॉस्ट साइड, अदरवाइज देयर इज अ फायर हैजार्ड। ठीक है, आपका एग्जॉस्ट फायर होने के चांसेस हैं। ठीक है, सर्जिंग होने के भी चांसेस हैं। एंड ऑल्सो आई डू नॉट वांट सॉरी, आई डू नॉट वांट कि मेरा जो एग्जॉस्ट गैस है वो यहाँ से लीक होके मेरा लूप ऑयल को खराब करे। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया, लेब्रेंस सील चाहिए क्यों हमको। टीसीए और ये टीसीआर क्या है सर, मेन इंजीनियरिंग? Dead शुरुआत से नहीं अटेंड real कर रहे हो time। क्या। हाँ TCA सर। इज रेडियल टर्बोचार्जर which we use for auxiliary engine. TCA is axial turbocharger ओ ओके सर, ओके सर, which ओके, we, समझ में आ हाँ गया। समझ गए ना, ओके, इनके हाँ शॉर्ट फॉर्म्स है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, और कोई डायग्राम है मेरे पास तो देखते हैं। ओके, तो जस्ट सपोज करो कि यहाँ पे मेरा बेरिंग लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें लूब ऑयल इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई डोंट वांट दिस लूब ऑयल टू गो हेयर ऑल्सो। ये मेरा टरबाइन है लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे टरबाइन है एग्जॉस्ट साइड वाली। आई डोंट वांट एग्जॉस्ट गैस टू गो एंड कंटामिनेट माई लूब ऑयल साइड, है ना, लूब ऑयल बेरिंग को कंटामिनेट ना करे मेरा। तो आई विल प्रोवाइड अ सीलिंग एयर यहाँ से। So when this sealing air is passing through this, fins of your labyrinth seals, it is going to expand and it is going to lose the energy. Also, your exhaust gas will lose the energy, and there will be a midpoint जहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये बैलेंस रहेगा, एंड ऑल्सो लूब ऑयल विल नॉट कम बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। ठीक है, लूब ऑयल भी वहां पे रह जाएगा। सो आई एम प्रिवेंटिंग माई एग्जॉस्ट टू गो टूवर्ड्स माई लूब ऑयल, इजंट इट। Also, I'm preventing lube oil to go towards my exhaust. बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। This is this is the basic function of a labyrinth. ठीक है, you don't not want any contamination of your lube oil, of your exhaust gas going towards lube oil, or lube oil going towards your exhaust side or your air side. ठीक है, एग्जॉस्ट एयर दोनों के लिए, अगर मैं यहाँ पे कंप्रेसर बोल दूं तो कंप्रेसर का भी सेम ही फंडा है। ठीक है, एग्जॉस्ट गैस निकाल दूं मैं, आई डोंट वांट माय कंप्रेस्ड दिस लूब ऑयल टू गो टुवर्ड्स माय कंप्रेसर साइड। ठीक है,
Sir, what in case of our turbocharger is in stop condition? व्हाट इन केस ऑफ टर्बोचार्जर इन, देखो Stop condition. जहाँ पे अटैच्ड पंप है वहां पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट? क्योंकि जब तक टर्बोचार्जर घूमेगा नहीं तब तक तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। और दूसरी बात, एक और चीज यहाँ पे आती है, दैट इज नोन एज वैक्यूम ब्रेकर। ठीक है, वो बाद में आऊंगा मैं। एंड इन रेडियल टर्बोचार्जर्स यहाँ पे आपका पिस्टन रिंग्स यूज होती हैं। ठीक है, वी यूज पिस्टन रिंग्स हेयर। They are specially designed piston rings which will prevent your lube oil to go towards your sorry turbine side and your compressor side। ठीक है, आएंगे इसमें, आएंगे एक बार लाइन बाय लाइन चलते हैं ना। हाँ, और तो स्लो। Okay. चलो, बेसिक कंसेप्ट समझ आया पहली बात। Yes, sir. चलो गाइस, ठीक है। आई डो नॉट वांट माय लूब ऑयल टू गेट कंटामिनेट। ठीक है, बिकॉज अगर मान लो मेरा एग्जॉस्ट गैस लीकेज करके चला गया तो मेरा लूब ऑयल क्या हो जाएगा? कंटामिनेट हो जाएगा, isn't it? This is axial turbocharger with outboard bearings. Loop wall तो contaminate हो जाएगा मेरा। So I don't want that. So what I will do? I will provide sealing air। यहाँ से मैंने sealing air दिया। ठीक है, it is going here and it is going in between। ठीक है, तो ये prevent कर रहा है दो चीजें। It is not allowing my exhaust gas to go here। Also it is not allowing my lube oil to go here। If my lube oil starts going here, what will be happen? Your first of all lube oil sump dry हो जाएगा, मे गेट लो। है ना, लो हो जाएगा। कल एक क्वेश्चन भी था इसके ऊपर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, देखो क्या होता है ना, हर इन ड्यूरिंग एवरी ओवरऑल वी हैव टू क्लीन दीज पाइप्स। जो ये जा रही है ना सीलिंग की पाइप्स, दीज आर वेरी थिन पाइप्स। ठीक है, कई बार ये कार्बन से चोक हो सकती हैं, कुछ हो सकता है। अगर ये चोक हो गया, सो विल आई बी एबल टू सप्लाई माई सीलिंग एयर नाउ? नो, राइट? सीलिंग एयर नहीं जाएगा। उस केस में क्या हो सकता है? दिस लूब ऑयल एट लो आरपीएम्स might go here with the turbine, right? At higher RPM, exhaust gas will come here, isn't it? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा खिचड़ी बन गया यहाँ पे, बट पॉइंट समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। तो लाइक यस्टरडे किसी ने क्वेश्चन पूछा ब्लोअर साइड का ना, ब्लोअर साइड का ऑयल लेवल कम हो रहा है, रीजन, राइट? इज ही हियर टुडे? यस सर, यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन था ना। यस सर। क्या मतलब हुआ उसका? आप बोलो, आंसर दो। सो लेब्रन सील ऑयल। का, लेब्रन सील हैज फेल्ड, राइट? यस सर, तो स्कैवन साइड जाके उसको। It could be like your, if your sealing air passage is choke, this is the passage of your sealing air, right? So sealing air passage is choke. So what is going to happen? No sealing air will be provided. Then there are chances that this lube oil will come here to your scavenge side, स्कैवन and साइड। you know, and it will go towards your scavenge manifold and all along with it। Clear? Yes, question का आंसर? यस सर, बट लेकिन सर इस साइड उस साइड में तो समझ में आता कार्बन डिपॉजिट हो रहे होंगे। इस साइड कैसे शोक होगा? ब्लोअर साइड साइड में। कैसे चोक? चोक होगा हाँ, मतलब? उस समझा साइड नहीं। मतलब जैसे कि सीलिंग एयर जो जा रहा है, तो जो छोटे छोटे पाइप्स हैं, ठीक है। तो टरबाइन साइड तो समझ में आ रहा है कि एग्जॉस्ट है तो उसमें कार्बन पार्टिकल से हो सकता है। तो इस साइड से कैसे होगा, मतलब ब्लोअर साइड में कैसे होगा, क्यों होगा चोक? क्या होगा? चोक क्यों हो जाएगा? देखो ये लाइंस तो कनेक्टेड आपकी इसी से है ना। ठीक है, मान लो कि यहाँ से एग्जॉस्ट आने के चांसेस हैं, अगर आपकी क्लियरेंस इसमें बढ़ गया, प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, उतना, हम्म। अगर ये जो टीथ का क्लियरेंस बढ़ जाता है, ठीक है, इतना बढ़ जाता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इन चीज़ों पे ओवरऑलिंग के टाइम पे, तो अब आपका जो प्रेशर रिडक्शन होगा ना हर स्टेज में, वो कम हो जाएगा। ठीक है, व्हेन इट हम्म। विल when it will reduce, there are possibilities that this can go here at lesser RPM, isn't it?
यस सर। ठीक है। दूसरी तो चीज, बस इफ तो वही एग्जॉस्ट यस, ही पूरा वो चले जाएगा ब्लोअर साइड में। जाने के चांसेस हैं दैट योर इट कैन गेट चोक बिकॉज ऑफ कार्बन ऑल्सो ओके सर। इफ योर वैक्यूम ब्रेकर इज नॉट वर्किंग। उस पे मैं आना चाहता हूँ बट आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, हाँ, यस सर। समझाते टाइम। ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा जनरल सा आइडिया लगा टर्बो चार्जर के बारे में। ठीक यस है। सर। इन योर TCA टर्बो चार्जर्स, that is for your main engines, ठीक है, main engine turbocharger, we have 3 Lagrange seal, right? One here, one here, and one on the impeller and between the casing. Is it clear? Because you do not want यहाँ से जो exhaust gas है वो भी scavenge में enter हो, isn't it? तो आप यहाँ से एयर प्रोवाइड करते हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? गाइस बोलो, इसका इसका पर्पस समझ आया इस वाली लेब्रेंस सील का? यस सर। ओके। यू डू नॉट वांट कि यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस मेरे निकल रही हैं, यहाँ से इनलेट हुआ, टरबाइन पे हिट होके जा रही हैं, यहाँ से चांसेस हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लियरेंस इट कैन कम हेयर एंड इट कैन कंटामिनेट माय स्कैवेंज स्पेस, राइट? तो आई विल प्रोवाइड सीलिंग एयर फ्रॉम दिस साइड नाउ। ओके, सो दिस विल ऑल्सो वर्क एज अ लेब्रेंस सील, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। लाइक दिस फेस इज योर लेब्रेंस सील फेस। ओके, आई डोंट नो हाउ मच see this face, okay, is it is complete circumference, समझ रहे हो? If they will show me this backside of blower, then we can do something, but no, they are not showing. Okay, all right, so this is for main engine। ठीक है, अगर मान लो इनबोर्ड बेयरिंग्स हैं, ठीक है, now suppose I have a inboard bearing design, let me see a inboard bearing design। okay, let us consider this is a inboard bearing design, है ना? इसमें भी आपने एक लैब्रेंस सील यहाँ दे दी, ठीक है, एक लैब्रेंस सील आपने यहाँ दे दी, एंड फॉर सेफ्टी पर्पस सपोज दिस इज योर इनबोर्ड बेयरिंग डिजाइन टर्बोचार्जर विच इज एक्सियल टाइप, हाँ, फॉर एग्जांपल हम बोलें ये रेडियल टाइप है बट जस्ट सपोज इट इज एक्सियल टाइप। ठीक है, एक्सियल टाइप में इनबोर्ड बेयरिंग वाला डिजाइन ऐसे ही रहेगा ना, बस आपका एग्जॉस्ट गैस ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, इजंट इट? ये डिफरेंस है ना? यस सर। बोलो। सर। ठीक है, बट इसमें हम एक एक्स्ट्रा लेब्रेंसील यहाँ देते हैं, ठीक है, मेन इंजन में, जस्ट टू बी श्योर कि आपका एग्जॉस्ट गैस ना आए। ठीक है, वो जो अभी आपने देखा यहाँ पे वीडियो में, ठीक है, जो फेस देखा था आपने यहाँ पे, दैट इज बिटवीन द इम्पेलर एंड द केसिंग। इज इट क्लियर? तो मेन इंजन में 3 रहेंगी और ऑक्सिलरी इंजन में 2 रहेंगी। ठीक है, ऑक्सिलरी इंजन में एक एक्स्ट्रा चीज है दैट इज नोन एज पिस्टन रिंग्स। क्लियर? बोलो गाइस। यस ठीक है, और क्या क्वेश्चन था कल का? सर एक मिनट बता रहा। सर सर वो समझ नहीं आया, ऑक्सिलरी इंजन में 3 क्यों रहेंगे, मेन इंजन में 2? यानी मेन इंजन में 3 बोला मैंने, ऑक्सिलरी इंजन में 2 बोला है, राइट? हाँ सॉरी। दिस इज ऑक्सिलरी इंजन। ठीक है, सर। ये इसमें तो देखो, आउटबार है ना सर, देखो आउटबार सुनो इनबार। सुनो, इनबोर्ड ऑक्सिजन इंजन में तो इनबोर्ड ही रहता है ना, आउटबोर्ड रहता ही नहीं है। तो अभी ये इनबोर्ड बेरिंग है। अभी मान लो कि आई डोंट वांट माय लूब ऑयल, आई टोल्ड यू लूब ऑयल को मैं नहीं चाहता कि कंप्रेसर साइड जाए, तो मैंने वहां पे लेब्रेंस सील प्रोवाइड कर दी विच इज दिस वन। ठीक है, ऑल्सो आई डू नॉट वांट माय एग्जॉस्ट टू कम हेयर ऑल्सो, लूब ऑयल आई डोंट वांट टू गो देयर, सो मैंने एक और लेब्रेंस सील विच इज दिस वन ये प्रोवाइड कर दी। इज इट क्लियर? मेन इंजन में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे देते हैं, बोलते हैं इसके बैक फेस पे भी मैं एक दे देता हूँ। ठीक है, जस्ट टू बी श्योर कि मेरा लीकेज ना ही हो किसी भी एंगल से।
इज इट क्लियर? लाइक ये वाला तो आपका इनपुट बेरिंग डिजाइन है ना, एंड यू कैन सी द लेब्रेन सील हियर, राइट? बोलो गाइस, ये लेब्रेन सील, ओके? क्या नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है, ओके। सो पर्पस यही है, देखो फंक्शन फंक्शन पता यही होना चाहिए आप लोगों को कि अगर मैं सिंपल सा एक ऐसा डायग्राम बना दूं, ठीक है, और इसमें ऐसे फिन्स बना दूं, सो वेन एवर सपोज मैं एक ही मीडियम लेता हूँ, ठीक है, ये फिन्स हैं, ठीक है, एंड दीज आर रिप्लेसेबल ना, 11 सील रिप्लेसेबल रहती हैं। सो व्हेन माय एग्जॉस्ट गैस इज गोइंग टू कम फ्रॉम हेयर एंड सपोज माय सीलिंग एयर इज कमिंग फ्रॉम हेयर, सो व्हेन एवर इट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस फिन्स, ठीक है, जब वो फिन्स से पास होंगी, ठीक है, एक फाइन एरिया से निकलेंगी और ये एक्सपैंड करेंगे यहाँ पे, तो pressure will reduce. Further it will go, again pressure will reduce. Similarly for exhaust gas, same thing is going to happen, and they are going to find a midpoint जहाँ पे आपका exhaust gas आगे नहीं जाएगा और ना ही सीलिंग एयर आगे जाएगा। Is it clear? लेबन सील का फंक्शन कैसे हो रहा है? Yes, sir. Understood. यस सर, अभी मैं गॉट इट सर। हाँ अब अभी मैं इस सीलिंग एयर की जगह लिख दूं ये लूब ऑयल, ठीक है, क्योंकि लूब ऑयल पंप है, और इस बार मैं सीलिंग एयर प्रोवाइड करूं बीच से, ठीक है, सेंटर से, तो वो दोनों फंक्शन एक साथ कर रहे हैं। यहां से मैं सीलिंग एयर दे दूं, so this sealing air is preventing exhaust gas to come here, also it is preventing lube oil to go here, isn't it? Follow this Lebrun seal which is happening on turbine side, right? And if you see the back face, इसमें आपने देखो यहाँ लिखा है कंट्रोल्ड लीकेज, ठीक है, ये बैक फेस है इम्पेलर का और ये केसिंग का, इसमें इसने लेब्रन सील के लिए बोल रहा है कंट्रोल लीकेज हो रहा है, दैट मीन्स प्रेशर लगातार रिड्यूस हो रहा है, बट इस फेस में कुछ भी नहीं है उसके पास सील करने को, ऑलरेडी बेरिंग्स हैं, तो हल्का सा लीक होगा, बस प्रेशर कम रहेगा एयर, ठीक है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एक अलग से सीलिंग हमें इम्पेलर के पीछे दी रहती है। इज इट क्लियर इन मेन इंजन टर्बो चार्जेस? बोलो गाइस। यस Yes, सर। sir. सर यहाँ पे ठीक सीलिंग है। के लिए सर यहाँ पे सीलिंग के लिए जो फीस बताया आपने, बस क्या वही हम्म। फैक्टर है? और जो सीलिंग जो प्रेशर है उसको मतलब हम लोग नहीं बोल सकते कि जो सीलिंग प्रेशर है वो हाई होता होगा उससे? देखो सीलिंग प्रेशर आपको डिपेंड करेगा आरपीएम पे ना, जितना आरपीएम ज्यादा है उतना ज्यादा कंप्रेशन होगा, है ना, और उतना ज्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है, वो आरपीएम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सर ये आप वही सीलिंग यूज कर सीलिंग रहे एयर हो का एयर जो जो आपका ब्लोअर प्रोड्यूस कर रहा है, सर ठीक है। सर अभी ये जो यहाँ पे सीलिंग एयर देते हैं सर, एक्सक्यूज मी सर, हम्म, तो ये सर ब्लोअर का ही एयर यूज करते हैं ना इसमें तो? ब्लोअर का ही एयर जो आपका टर्बोचार्जर प्रोड्यूस कर रहा है एयर, वही एयर यूज की जाती है, ठीक है। ओके सर। यहाँ से देख सकते हो आप टैपिंग जो ब्लोअर से ही ली गई है, ठीक है, ब्लोअर के आउटलेट से, ओके। नाउ ओके, सो सी दिस, अ वैक्यूम ब्रेकर, ठीक है, अ वैक्यूम ब्रेकर or it is a non-return valve, close the sealing air passage at part load condition to prevent sucking of oil by vacuum in the scroll casing, ठीक है। अगर आप देखोगे ये सीलिंग एयर आ रहा है, इस रीजन में एक चीज लगाई जाती है, दैट इज वैक्यूम ब्रेकर, ठीक है। अभी इसका फंक्शन क्या है? सपोज करो यू आर रनिंग एट डेड स्लो अहेड, विल योर प्रेशर बी इनफ हेयर टू डू द सीलिंग? No, sir. बोलो। नो सर। सीलिंग तो इस टाइम तो प्रेशर ही नहीं है,
कितना प्रेशर रहता है जो डेड स्लो हेड पे रहता है? स्कैवेंज प्रेशर देखा है कभी? जीरो ही रहेगा, ठीक है, मे बी 0.1 हो जाए, करेक्ट। बट यहाँ पे फंडा वो नहीं है, यहाँ पे फंडा ये है, डेड स्लो हेड पे आपका क्या चल रहा है? ऑक्सिलरी ब्लोअर, इजंट इट? ऑक्सिलरी ब्लोअर आर रनिंग। यस सर। एंड अगर आप ध्यान दो कि जब ये फिल्टर है, ठीक है, तो जब टर्बो चार्जर पे के फिल्टर चलते हुए टर्बो चार्जर पे फिल्टर पे आप हाथ रखो तो क्या फील होता है आपको? शक करता है सर। वैक्यूम सब कर क्रिएट रहा होता है। है ना? यस वैक्यूम सर। क्रिएट होता है, यस ठीक सर। है। यस। तो आपका ये रीजन वैक्यूम कंडीशन में चला जाता है, इजंट इट? क्योंकि एक तरीके से वो तो एयर को सक करेगा, उसके बाद कंप्रेस करेगा, और आपका अभी प्रेशर इतना बिल्डअप नहीं है यहाँ पे। ये आपका ऑक्सीजरी ब्लोअर चल के भेज रहा है एयर इंजन को, दैट इज ओके। बट बिकॉज ऑफ दिस, व्हेन इट इज गोइंग, इट इज क्रिएटिंग अ वैक्यूम हेयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम देयर आर चांसेस कि यहाँ से लूब ऑयल आए और वो आपके। सर समझ नहीं आया सर, और एक बार वो वैक्यूम कैसे ओके प्रोड्यूसर ओके बने? ओके ओके। आपने टर्बो चार्जर पे फिल्टर पे हाथ रखा होगा रनिंग कंडीशन पे, राइट? रखा ही होगा सबने, हाँ हाँ या सर। सर। फिर, है ना, सबने रखा होगा। या तो फिर आप सोच लो कि एयर कंप्रेसर के जो फिल्टर रहता है उस पे हाथ लगाते हो तो आपको सक्शन फील होगा, है ना, कि अंदर हवा खींच रहा है। तो यहाँ से अंदर हवा खींच रहा है ब्लोअर, है ना। कैसे खींच रहा है? वो एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है तभी खींच रहा है, इजंट इट? जब ये घूमेगा और ये एयर को रिलीज करेगा यहाँ से वॉल्यूट केसिंग पे, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, उसकी वजह से एयर को खींचेगा ये, इजंट इट? राइट। बट आई एम टेलिंग यू, इंजन इज रनिंग एट वेरी स्लो स्पीड राइट नाउ, एंड ऑक्सिलरी ब्लोअर्स आर रनिंग, ठीक है। तो ऑक्सिलरी ब्लोअर भी कहाँ से सक्शन लेता है? थ्रू द फिल्टर इटसेल्फ, टर्बोचार्जर के फिल्टर से ही लेता है, इजंट इट? बताया था ना यस मैंने, सर। ऑक्सिलरी ब्लोअर्स टेक सक्शन फ्रॉम द टर्बोचार्जर ब्लोअर फिल्टर इटसेल्फ, राइट। यस सर। तो जब यहाँ से वो एयर को सक करेगा, ठीक है, और वो इंजन को सप्लाई करेगा, इज इट सप्लाइंग 100% एयर दैट योर इंजन रिक्वायर्स एट दैट आरपीएम? नो सर। नो, नो सर। ठीक है। तो एक तरीके से हल्का सा वैक्यूम क्रिएट होता है, राइट। अभी समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ब्लोअर में जहां से ये टैपिंग जा रही है आपकी सीलिंग के लिए, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, बिकॉज वो तो एयर यस सर। आपकी इंजन खा रहा है सारी, राइट। आपके पास एक्सेस एयर है ही नहीं जो कि आपका प्रेशर बना रही है, इजंट इट? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो एक वैक्यूम कंडीशन आएगी, गाइस, बी विद मी, बोलो। यस सर। ठीक है। अभी ये वैक्यूम अगर आ गया यहाँ पे, तो अभी ये इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग एयर, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डोंट यू थिंक दिस लूब ऑयल विल कम बैक? बेरिंग से लूब ऑयल आएगा टुवर्ड्स योर लोअर साइड। यस सर। एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? यस। यस सर, वैक्यूम क्रिएट होगा साइड से तो। ठीक है। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वैक्यूम ब्रेकर्स आर प्रोवाइडेड टू यू, ओके। दिस आंसर, अगर जो भी कल जिसका भी क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें एक आंसर ये भी इंक्लूड किया जा सकता था वैक्यूम ब्रेकर वाला, उसको सुन के वो खुश हो जाता था आपका कि ये पता है। नॉर्मली क्लास 4 में पढ़ाते नहीं है इस चीज़ों को, बट आई विल टेल यू। सर कौन से क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा? आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे। क्वेश्चंस थे ना कल, 4-5 पूछे थे, मेरे को याद नहीं है यार अभी क्या थे, बट उसमें से एक का आंसर ये भी था कल। क्वेश्चन बताओ सर। हाँ बोल दो एक बार यार, अच्छा रहेगा। टर्बो चार्जर ब्लोअर साइड ऑयल लेवल लो है, उसका रीजंस। टूअर साइड वो तो लेब्रेंस सील लीक कर रही है ना। ठीक है। एक हाँ, मिनट रुको। क्योंकि उसकी वजह से सर वो ऑयल उसी के साथ जा रहा है टर्बो चार्जर साइड में, तो इसलिए हाँ चला जाएगा। वो लेवल लो हो रहा है ना। हाँ, जो जस्ट अभी समझाया जो मैंने, है ना। तो हम्म। मैंने इसकी लोकेशन आपको बता दी, इट इज लोकेटेड राइट हेयर, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ये जो ग्रूव बना हुआ है इस पे लोकेटेड है। फंक्शन, इसका वर्किंग देख लेते हैं कैसे है, ठीक उसका है। वो ही बोल सकते हैं ना, सप्लाई जो एयर जो जा रहा था, सीलिंग एयर। हाँ, जहाँ से सप्लाई हो रही है, ठीक है, हाँ, तो सीलिंग एयर। सीलिंग एयर भी हो रहा था, वो भी तो हमारा ये हो रहा है। क्या कहते हैं, चोक तो हो गया पैसेज, जो उसका रीजन वो हाँ, भी बोल पैसेज सकते हैं। भी चोक हो जाएगा तो भी एक रीजन है ना। दो दो या रीजन है फिर सर। क्लियरेंस,
क्लियरेंस बहुत बढ़ गया है लेब्रिन सील्स के बीच में, वो भी एक रीजन है ना। हम्म। पैसेज पैसेज किसका सर, सीलिंग एयर का? नहीं, पैसेज, यस, अगर ये पैसेज चोक हो जाए, मान लो ये पैसेज मेरा चोक हो गया है किसी रीजन से, कार्बन डिपॉजिट से या डेब्री से, आपका फिल्टर में फट गया है थोड़ा सा, वहां से कचरा आके यहाँ पे फंस गया है, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस विल नॉट सप्लाई एनी सीलिंग एयर नाउ, राइट। तो लेब्रिन सील फेल हो जाएंगी, ये लूब ऑयल कहाँ आएगा, ब्लोअर साइड में, यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज सर, सर ये हम्म जो सीलिंग एयर का जो फीडिंग लाइन है वो हम्म हमेशा हमारा सिर्फ जो ब्लोअर साइड है वहीं से रहेगा, जो ऑक्सिलरी ब्लोअर है उससे हमारा ये फीडिंग लाइन इसमें नहीं रहेगा, है ना सर? ऑक्सीलियरी ब्लोअर भी तो हवा इधर से ही ले रहा होता है ना। तो सीलिंग एयर को, ये सीलिंग एयर का जो लाइन है उसमें ऑक्सिलरी हम्म ब्लोअर का क्यों जाएगा क्या? हाँ, जाएगा ना, लेकिन ऑक्सीलियरी ब्लोअर के टाइम प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है, राइट। ओके ओके ओके। इतना प्रेशर नहीं जनरेट कर पा रहा है कि यहाँ पे आपका, तभी तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ओके राइट। ओके। मान लो स्टैंड स्टिल कंडीशन है, तो सबसे पहले तो आप ऑक्सीलियरी ब्लोअर से स्टार्ट करते हो, है ना। इंजन रुका हुआ यस है, सर। ऑक्सीलियरी ब्लोअर स्टार्ट किया, क्या उस टाइम आपको कुछ भी स्कैवेंज प्रेशर दिखता है? नहीं नहीं। सर। ठीक है, दिखेगा भी तो 0.1 मैक्स टू मैक्स, है ना, इससे ऊपर तो नहीं दिखेगा। तो 0.1 बार प्रेशर इज वेरी वेरी लेस, राइट, इट कैन नॉट होल्ड डाउन योर लूब ऑयल एंड ऑल, इजंट इट। लूब ऑयल को प्रिवेंट कैसे करेगा वो दूसरी तरफ आने से, नहीं कर सकता है। उस टाइम क्या होता है, ओके। ये वैक्यूम ब्रेकर काम पे आता है, इवन एट लो लो स्पीड एंड व्हेन योर इंजन इज इन स्टॉप कंडीशन, ठीक है। दिस वैक्यूम ब्रेकर कम्स इनटू एक्शन। अभी इसमें क्या हो रहा है, लेट अस सी हियर। ओके, सो सपोज अ वैक्यूम हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, आपका ब्लोअर साइड में वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा, यू सी दिस वॉल्व बिकॉज ऑफ द वैक्यूम, इट विल लिफ्ट अप, एंड व्हेन इट विल लिफ्ट अप, आपका सराउंडिंग से एयर आ सकता है, एंड इट विल ब्रेक द वैक्यूम, बोलो, एंड इट इज गोइंग फॉर द सीलिंग पर्पस यहाँ से। यस सर। नहीं समझ आया? नहीं सर, समझ आया। ओके, सर जिसको एटमॉस्फेयर नहीं में आया, सर। एक बार दोबारा करेंगे। वैक्यूम क्रिएट हुआ, देखो ये चीज कहाँ लगी हुई है, पहले वो चीज देखो तब समझ आएगा, है ना। ये चीज लगी है आपकी यहाँ पे, इस पे, ठीक है, यहाँ पे। तो व्हेन द वैक्यूम इज देयर, ठीक है, मान लो ऑक्सीजन ब्लोअर्स आर रनिंग, मेन इंजन इज रनिंग एट दैट स्लो हेड, ऑक्सीजन ब्लोअर इज रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, इट कैन नॉट सप्लाई द सीलिंग एयर। नाउ व्हेन द वैक्यूम इज क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम, ये इस वॉल को लिफ्ट कर देगा, लाइक हाउ योर एयर कंप्रेसर वॉल्स आर वर्किंग, इजंट इट। वॉल को लिफ्ट करेगा कि नहीं, यस वैक्यूम सर। प्रेशर से, है ना। तो जब वैक्यूम से ये लिफ्ट हुआ, नाउ आपका आउटसाइड से जो इंजन रूम का एयर है, दैट कैन एंटर एंड इट विल ब्रेक द वैक्यूम। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, 1 बार आ जाएगा प्रेशर, ऑब्वियसली यस लिटिल सर। मोर देन 1 बार, बट 1 बार ले लेते हैं, है ना। इंजन रूम प्रेशर इज मोर देन लिटिल बिट 1 बार, इजंट इट, प्रेशराइज रहता है आपका इंजन रूम। तो 1 बार ही लिख लेता हूँ। तो वैक्यूम ब्रेक हो गया, आपको वैक्यूम नहीं क्रिएट करना है, अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो मैंने ये सप्लाई नहीं दिया आपको, ये चीज आपको मैंने दी नहीं है, ये सिर्फ मेरी केसिंग यहाँ से बंद हो गई है, ठीक है, और वैक्यूम क्रिएट होता है, तो क्या होगा, जो बेरिंग्स लगी हुई हैं, वहां से लूब ऑयल यहाँ पे आ जाएगा कंप्रेसर में, हाँ सर। राइट। तो उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए आई हैव गिवन अ वैक्यूम ब्रेकर, ठीक है। तो नाउ एयर विल कम इन एंड इट विल ब्रेक द वैक्यूम, नाउ इट विल नॉट सक योर लूब ऑयल, ठीक है, एंड दिस एयर प्रेशर इज गोना कीप योर लूब ऑयल फ्रॉम कमिंग टू योर लोअर साइड, ठीक है। नाउ वेंस द प्रेशर इज बिल्डअप, मान लो आपका प्रेशर बिल्डअप हो गया अब, ठीक है, 1 बार प्रेशर आ गया या 1.5 बार प्रेशर आ गया, जो भी है, ठीक है, आपका अभी अच्छी स्पीड पे चल रहा है, हाई लोड पे चल रहा है इंजन, प्रेशर डेवलप हो गया आपका, राइट। तो वो जब प्रेशर आएगा, इट विल क्लोज योर वॉल्व अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड देन इट इज गोइंग फॉर सीलिंग पर्पस। समझ आया क्या बोला? सर सर मेरे हम्म से ये एक पार्ट मिस हो गया, ये जो आपने बोला वैक्यूम ब्रेकर में जो एयर सप्लाई हो रहा है वो हम्म। किधर से आ रहा है वो?
एटमॉस्फेयर से, इंजन रूम से। अच्छा अच्छा, वो एटमॉस्फेरिक एयर ही है। ओके ओके। एटमॉस्फेयर एयर आपका इंजन रूम का एयर। सर तो अच्छा कंटेमिनेशन अच्छा। के हाँ। चांसेस भी हो सकते हैं। कंटेमिनेशन के चांसेस, यस हो सकते हैं, ठीक है, दैट्स वाई आपके चोक होने के चांसेस भी होते हैं ना पैसेजेस, तभी तो आपको हर ओवरऑलिंग में क्लीन करना होता है। कंटेमिनेशन के चांसेस तो यहाँ से भी हैं, राइट। अच्छा तो वहां से तो ठीक है, फ्रेश ही आएगी और ना वहां फ्रेश से एयर तो आती है, बट यस देयर आर चांसेस कि थोड़ा बहुत गंदगी फ्रेश एयर में भी हो, है ना। नॉर्मली क्या रहता है कि ये ऐसे कवर रहता है ना, ऐसे ऐसे कवर रहता है। नहीं, मेरा उधर साइड तो फिल्टर है, इस साइड तो बिल्कुल भी कोई फिल्टर ही नहीं है। नहीं, इधर भी एक फिल्टर रहता है वैसे, अच्छा ठीक है, रहता है। डिजाइन्स में, बट वो वायर मेश टाइप फिल्टर रहता है, वहां से ओके। एयर को सक करते हैं ना, इसमें वो दिखाया नहीं हुआ है डायग्राम में, ठीक है, एक्सक्यूज तभी सर। आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा ये लगा हुआ कहीं पे। सर, और वैक्यूम ब्रेकर का भी मतलब जो फिल्टर वगैरह भी जो साफ करना होता है, या फिर डायरेक्टली रिप्लेस वगैरह ही हो जाता है सर, पूरा का पूरा वैक्यूम ब्रेकर? देखो साफ ही होता है नॉर्मली तो ये, ठीक है, और ये डिजाइन टू डिजाइन में बोल रहा हूँ आपको, एक डिजाइन में मैंने ये खुला हुआ भी देखा हुआ है और एक डिजाइन में मैंने ये बंद देखा है, ऐसे बंद मतलब, तो आपका एयर यहाँ से आएगा और यहाँ पे फिल्टर थे, ठीक है, और उसमें रूटीन थी एवरी 500 आवर्स इसको क्लीन करने वाली, ठीक है, बट एक डिजाइन में ओपन था डिजाइन, उसमें कोई रूटीन नहीं है, एयर जाएगी जाएगी यहाँ से जाएगी बस, जब ओवरऑलिंग होगी टर्बो चार्जर की तो ये पैसेज क्लीन करने हैं अच्छे से, वो तो इसमें भी करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज सर। हम्म। सर या डेड स्लो पर या फिर लो आरपीएम पर, जो आपने हम्म। बोला कि जो वैक्यूम ब्रेकर है वो सफिशियंट है कि वो मतलब कि ल्यूबेल का जो हमारा सीलिंग है उसको, मतलब कि उसको सीलिंग को प्रोवाइड करे, मतलब जो लेबरनाथ सीलिंग है उसको करेक्ट करेक्ट। वो सफिशियंट है। तो सर हम्म। जब ये हमारा वैक्यूम एयर के थ्रू हमारी ये जब सफिशियंट है ही, तो फिर जो हम लोग अलग से जो टर्बो चार्जर को जो मतलब कि जो प्रॉपर रनिंग में जो हम लोग वहाँ से सीलिंग वहाँ से जो लाइन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थे। इसी को हम लोग परमानेंट कर देना चाहिए था फिर तो। मैं समझा नहीं, लेकिन आप देखो जो क्वेश्चन बोल रहे हो ना, देखो जी। अभी पहली बात क्या है, यू डू नॉट वांट कि लूब ऑयल टू कम हेयर, राइट, आप बोल रहे हो, लेकिन जब हाई पे चल रहा है, ये जब सर। हाई पे चल रहा है तो लूब ऑयल पंप अटैच पंप है जो, वो कितना प्रेशर जनरेट करेगा, ज्यादा करेगा, उस टाइम आपका 1 बार इज इनफ टू होल्ड दैट। समझो समझो मेरी बात समझो, कि यहाँ पे बनाता हूँ। ओके ओके, समझ समझ गया सर, समझ गया सर। नहीं एक हायर। एक जस्ट, हाँ क्लियर, एक बार क्लियर हो जाए चीजें तो अच्छी है ना। यस अ, सर। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एंड अभी इतना सा याद रखो कि जैसे मान लो यहाँ से 4 बार प्रेशर आता है सीलिंग गेयर का, ठीक है, यस बट सर। एट द एंड जब तक वो यहाँ से निकलता है ना, इट इज लेस देन 1 बार, ठीक है, वो इतना एक्सपैंड हो के कम होता रहता है प्रेशर, दिस इज वन थिंग। सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर लूब ऑयल, सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर एग्जॉस्ट गैस, ठीक है। अभी व्हेन माय इंजन इज रनिंग एट स्लो आरपीएम, then it is not producing that much pressure also, lube oil pump, isn't it? यस सर। ठीक है, also 1 बार is more than enough to hold my pressure somewhere, मे बी आपका lube oil यहाँ तक आ जाए मे बी, ठीक है, लेकिन वो होल्ड कर देगा कि यहाँ बाहर नहीं निकलने देगा, समझ रहे हो, ओके ओके है ना। सर। नॉर्मल कंडीशन में मे बी lube oil यहीं पे रुक गया हो, इस बार क्या है कि आपका 1 बार ही प्रेशर है तो आपका वो यहाँ तक रुक गया है, ठीक है, बस आपका मेन मकसद ये है कि आपका वो लेब्रेन सील से बाहर नहीं आना चाहिए, ओके। चलो वैक्यूम ब्रेकर वाला सबको समझ आया सर फंडा। सर बोलो बोलो। सर आउटवर्ड बियरिंग में जैसे लूब ऑयल के लिए अलग से गियर पंप रहता है टर्बो चार्जर में, हम्म। तो वो गियर पंप कितना प्रेशर डेवलप कर सकता है? यार इसका तो कोई वो नहीं है, क्योंकि मैनुअल में भी नहीं लिखा है, और कोई प्रेशर गेज होता नहीं है, ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच और प्रेशर इट इज डेवलपिंग। लेकिन आउट ऐसा देखो इनवर्ड ऐसा बियरिंग में रहता तो, है ना। हम्म। हाँ, लेकिन सर तो इनवर्ड बियरिंग में जैसे अपना हम्म ल्यूब ऑयल है, वो मेन इंजन का ल्यूब ऑयल है, वो उसका मेन एक इंजन थ्री टैपिंग। बार है ना, तो उसी के अप्रोक्सीमेटली रहेगा, ठीक है, उससे हाँ, ज्यादा तो नहीं रहेगा, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ग्लोबल 10 बार का रहेगा, इफ आई हैव टू टेक अ गेस इट विल बी 3 to 4 बार ओनली, नॉट मोर देन दैट।
ठीक है। 2 से 3 बार तक प्रेशर बोलो जनरल, ठीक है। मैंने ढूंढा था इसका भी, लेकिन मेरे को परफेक्ट मिला नहीं कहीं पे भी, और ना कोई प्रेशर गेज होता है कि हम चेक कर सकते हैं। चलो, ओके। नाउ जो कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके सबके आंसर मिल गए अब, कि अभी भी कुछ डाउट है उस आंसर्स क्वेश्चंस में? सर फिर से रिपीट कर दो, टर्बो चार्ज रीजन पता चल गया, ब्लोअर साइड के ऑयल है ना, ऑयल लेवल कम हो अच्छा गया। हाँ, एक चीज और बताना मेरे को, उसके बाद शुरू करते हैं। अगर मान लो ये एग्जॉस्ट क्या, सॉरी, ऑयल, इफ इट गोज टू योर, मान लो लेब्रेन सील फेल हो गई एंड दिस ऑयल गोज टू योर टरबाइन साइड, ठीक है। तो टरबाइन साइड में जाएगी तो देयर आर चांसेस ऑफ एग्जॉस्ट फायर, ठीक है। दूसरी बात कि वो उसको कंटामिनेट करेगी आपकी नोजल रिंग को, ठीक है। उसकी वजह से एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी, बिकॉज आरपीएम ड्रॉप हो जाएगी, है ना। आरपीएम ड्रॉप होगा तो सर्जिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। सर्जिंग में पढ़ा था ना कि टरबाइन साइड फॉल्ट, है ना। तो ये भी फाउल, ऑयल यस से सर। तो, है ना, टरबाइंस ये भी ऑयल से फॉलिंग ही हो रही है ना एक तरीके से, यस सर। राइट। सो ये सब रीजन आ सकते हैं व्हेन योर this exhaust gas is, sorry, this lube oil is going to your hair. If suppose oil, exhaust gas is coming here to lube oil, then lube oil will become black. इसमें एक और आ जाएगा, lube oil consumption increases. If exhaust gas goes towards your lube oil side, then black lube oil, isn't it? Contaminated lube oil. Now this things you can say for your outboard bearings also, हाँ, same ही thing आएगा, चीजें same ही आएंगी. And from here, if it is lube oil goes towards your compressor side, then it will stick to your compressor blades. Also it will stick to your casings and all. Heat transfer नहीं होगा उतना अच्छा, ठीक है। scavenge manifold में जाएगा oil, which is also not required. And then your सॉरी, उससे पहले तो एयर कूलर में जाएगा। एयर कूलर में फिन्स में जब जाएगा तो वहां पे एक एज अ इंसुलेटर काम करेगा, आपका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा एयर का, इजंट इट? समझ रहे हो ना प्रॉब्लम्स? यस सर। कोरिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। अगर ऑयल आगे जाएगा और ऑयल कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, राइट। और ये पॉइंट्स आप आउटबोर्ड इनबोर्ड हर एक में बोल सकते हो, समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी बोलो क्या क्वेश्चंस थे और क्या हमने आंसर नहीं दिया अभी तक कल के क्वेश्चंस का? एक सेकंड का गया। हाँ, क्वेश्चन था टर्बो चार्जर ब्लोअर साइड ऑयल लेवल लो रीजन से, ये हो गया। हो लैब्रिंथ गया ना। सील, हाँ, लैब्रिंथ सील वर्किंग। वर्किंग पे पता चल गई, प्रेशर रिड्यूस होता है एज इट पासेस सर थ्रू उसको एवरी उसको फिन। क्या बोलेंगे, जो उसका फिन्स बोलेंगे ना, दोनों के फिन्स फिन्स के। फिन्स फिन्स, यस, फिन्स, टीथ बोल लो, फिन्स बोल लो, ठीक है। ठीक है, फिन्स जो मैश होते हैं हम्म। उसके थ्रू से मतलब जो फ्लो होता है तो और प्रेशर रिड्यूस हो जाता डिजाइन भी दो टाइप के हैं, ठीक है। एक तो मैंने वो जो ये टीथ वाला बनाया, ठीक है, जिसमें दोनों टीथ हैं। एक रहता है जिसमें शाफ्ट ही रहेगी और दूसरे में टीथ नहीं रहेगा, ठीक है। इफ आई हैव है। दिस और नॉट, आई डोंट नो। ऐसे रहेगा, ये शाफ्ट है और यहाँ पे लेब्रेन सील लगी हुई है, और इसमें इसी के टीथ रहेंगे सिर्फ, ठीक है। ऐसे, ये रोटर है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट गैस आएगी, एक्सपैंड होगी, यहाँ जाएगी, एक्सपैंड होगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ से एयर आएगी, वो भी सेम तरीके से एक्सपैंड होके, ठीक है। एक ये डिजाइन रहता है, और ये जो दूसरा डिजाइन है, दैट इज इंटरलॉक डिजाइन, हाँ। नॉर्मली यही रहता है इंटरलॉक डिजाइन हमारा, ठीक है। हाँ, और ओके बोलो सर। क्या क्वेश्चन था जो आंसर नहीं किया? टर टरबाइन साइड लैब्रिंथ सील लीकिंग इफेक्ट हो गया ये भी। हम्म। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सीलिंग एयर इज नॉट सप्लाइड। सीलिंग इज नॉट सप्लाइड, तो देखो, अभी उसका भी आंसर यही है ना। ये हर सारे चीज एक रीजन दूसरे से, बोल देंगे, ये सारे हाँ रीजन बोल देंगे इसका भी। हर चीज एक दूसरे से लिंक है, सोच लो, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कवर नहीं हुआ। यस सर। उसने सर्वेयर ने एक क्वेश्चन पूछा, मे बी आंसर नहीं, अगर उसको सेटिस्फैक्टरी लगा तो वो क्रॉस पूछता रहा, पूछता रहा, पूछता रहा, ठीक है। कि उसको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है लेबन सील की कि नहीं, और वो क्या क्या सील कर रहा है ना।
ओके सर। Is this okay? Labyrinth seal topic? यस सर। सर ठीक। सर ये सर्जिंग और फॉलिंग सेम चीज होता है क्या? सर्जिंग एंड फाउलिंग, फाउलिंग इज आपका लाइक कोई भी चीज, अगर मान लो कभी वो कूलर खोला है, प्लेट टाइप कूलर, सर ये सर। हाँ, उसमें आपने देखा है वाइट वाइट सा हो जाता है पूरा वो, देखा है, देखा है? उसका क्या, सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं उस पे, यस सर, यस। उसको भी फाउलिंग बोलते हैं। कोई भी चीज जो गंदगी पकड़ रही है वो फाउलिंग है, ठीक है। कोलेट हो सर्जिंग रही है, इज ओके। हाँ, सर्जिंग इज डिफरेंट। सर्जिंग इज रिवर्सल ऑफ फ्लो, बैक फ्लो, है ना। ओके सर, अगर सर्जिंग बताया आपका सर आपने। प्रेशर रेशो एक पर्टिकुलर प्रेशर रेशो पे अगर आपका मास फ्लो रेट बिलो द क्रिटिकल वैल्यू चला जाए और द सर्ज लाइन बिलो चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? यही होता है ना सर्जिंग। यस सर, यस सर। इफ योर मास फ्लो रेट फॉल्स बिलो एट अ पर्टिकुलर प्रेशर रेशियो फॉल्स बिलो योर critical line, right? Critical value. This critical value is your surge line. That is known as, and then what is going to happen? A reversal of backflow रिवर्सिंग of फ्लो, air will यस सर। happen, and that is surging. Okay. ओके ओके सर। Okay. Now, अच्छा, और कोई क्वेश्चंस पूछते हैं क्या टर्बोचार्जर में? आई थिंक दिस वैक्यूम ब्रेकर वाला कभी सुना नहीं होगा आप, है ना। ये एक्चुअली थोड़ा हाई लेवल पर चला जाता है, क्लास 2 लेवल का। मैंने जस्ट बता दिया कि अगर आप ये भी आंसर दे सकते हो वैक्यूम ब्रेकर के ऊपर, अगर उसने पूछ लिया भाई स्लो आरपीएम पे ऑयल क्यों नहीं आ रहा, है ना। एक अभी आपने से पूछा था किसी ने, राइट, स्लो आरपीएम पे ऑयल क्यों नहीं आ रहा, या स्टॉप इंजन पे ऑयल क्यों नहीं आ रहा, पूछा था ना, यस सर। है ना। तो उसमें वैक्यूम ब्रेकर काम आ रहा है, यस सर। ठीक है। अगर यहाँ पे 1 बार प्रेशर है सपोज, तो ये वैक्यूम ब्रेकर बंद ही रहेगा, और 1 बार का प्रेशर इनफ रहेगा कि लूब ऑयल को यहाँ नहीं आने दे। लेकिन अगर ये प्रेशर 1 बार से कम है तो ये लिफ्ट हो जाएगा, राइट। ओके, चलो आगे बढ़े थोड़ा। आई थिंक यस इससे सर। ज्यादा तो कुछ है नहीं अभी कवर करने को, थोड़ा मटेरियल्स वगैरह देख लेते हैं यार, है ना। Okay. सो मटेरियल्स देखो थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। 2-3 चीजों से मटेरियल बनते हैं एक्चुअली में, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से होता है सब कुछ। बट एक एक टर्म्स याद रहे तो अच्छा है। नोजल रिंग, नोजल रिंग का फंक्शन क्या है, बोलो जल्दी। कोई भी है कॉन्फिडेंट, हिंदी में बोलो यार, नोजल रिंग का फंक्शन क्या सर है? वो एग्जॉस्ट गैस ये करता है, टर्बाइन ब्लेड्स पे डायरेक्ट्स डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट्स डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैस। सर वेलोसिटी इंक्रीज किनेटिक करता है और बढ़ाता है, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करता है। कम करता है, किनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और प्रेशर वेलोसिटी एनर्जी बढ़ाता है, एंड प्रेशर एनर्जी प्रेशर डिक्रीज। एनर्जी रिड्यूस, डिक्रीज। राइट। यस सर। मटेरियल इज निमोनिक अलॉय। निमोनिक अलॉय किस, क्या क्या चीज होती है इसमें? इट इज अ निकल बेस्ड अलॉय containing chrome, titanium, aluminium, मोलिब्डेनम। molybdenum and tungsten, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ हाई हीट रेजिस्टेंट एंड कीप रेजिस्टेंट मटेरियल, राइट। इसको निमोनिक अलॉय जो है, इट इज हाई हीट रेजिस्टेंट एंड क्रीप रेजिस्टेंस। क्रीप क्रीप क्या होता है? सर cyclic load at cyclic load at high temperature for a periodic time. फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। Yes sir. ओके, देन comes your turbine blades,
शेप इज, सबको पता ही होगा नाम तो, पोएट्री। फर ट्री अरेंजमेंट। फर ट्री शेप कैसा रहता है, ये पूछते हैं ओरल्स में। जैसे क्रिसमस ट्री को उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसा रहता है ब्लेड, और उसमें बीच में एक होल रहता है, ठीक है, नॉट ऑन ऑल ब्लेड्स, किसी किसी में। तो इस पार्ट को बोलते हैं फर ट्री शेप अरेंजमेंट। दिस होल इज गिवन सो दैट इसके अंदर से एक चीज जाती है, दैट उसको बोलते हैं लेसिंग वायर, लेसिंग वायर। ठीक है। वो अभी बाद में करते हैं, अगला चीज वही आएगा। तो टर्बाइन ब्लेड्स, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हाई हीट एंड creep resistant material which is again mnemonic alloy, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मटेरियल कई बार डिफरेंट भी कई बुक्स में लिखा रहेगा, ठीक है, और उसमें लिखा रहेगा एंड और निमोनिक अलॉय ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं हर चीज का अलग अलग नाम दे दूं आपको तो आप पागल हो जाओगे याद करते करते। निमोनिक अलॉय इज बेटर टू रिमेम्बर, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। इट इज यहाँ पे एक और चीज ना, इट इज ऑल्सो फटीग रेजिस्टेंस। दिस निमोनिक अलॉय गिव्स ऑल दीज थ्री थिंग्स। सो यहाँ पे भी सेम चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बोलो गाइस, इज इट क्लियर? सर ये जो आपने आपने बताया शेप फ्री 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 ट्री शेप सर अरेंजमेंट, तो सर ये इसमें ये फॉर्मली टाइटेन नहीं होता है, मतलब लूजली टाइट होता है, ऐसा मैंने लूज सुना है, टाइट तो ये रहता सब है, लूज क्यों टाइट ऐसा, रहता है, ठीक है। इसका एडवांटेज, रीजन, आ रहे सर हैं आ इसका रहे रीजन। हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, रुको। एडवांटेज, पॉजिटिव फिक्सिंग, मिनिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन, लूज फिट, तो पॉजिटिव फिक्सिंग मतलब? एक मिनट, फॉर प्रोवाइडिंग, फॉर प्रोवाइड, यार मैंने क्या लिख दिया, प्रोवाइडिंग लिख दिया, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर एक्सपेंशन। आपका आंसर मिल गया। लूज फिट क्यों होता है? पॉजिटिव फिक्सिंग मतलब? ओके, ये सर ये सर। पॉजिटिव फिक्सिंग मतलब कि जब ये आपका उस पे निकलेगा ना, लाइक मान लो कि मैं अगर ये बना दूं आपका टरबाइन डिस्क, और इसमें भी ऐसा शेप रहेगा, है ना, तो स्लाइड फिट करके बैठता है ये। तो जब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। इज इट क्लियर? लगेगी ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतने हाई आरपीएम पे ब्लेड पे, यस सर। ठीक है। सो इट इज अ स्लाइड फिट। हाँ, स्लाइड फिट मतलब कि ऐसे यहां से ऐसे करके मैं डालता हूँ इसको अंदर, क्लियर। ऐसे ऊपर से नहीं डाल सकते हो आप, आपको साइड से स्लाइड करके इसको अंदर डालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक लॉकिंग बोल्ट होता है, ठीक है, उसका नाम होता है टी बल्ब, ठीक है, और अ पिन इज यूज्ड, ठीक है, किसी किसी जगह उसको लिखते हैं पिन इज यूज्ड टू लॉक इट इन प्लेस, पिन इज यूज्ड टू लॉक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है ताकि वो थर्मल एक्सपेंशन के लिए केटर कर सके। इज इट क्लियर? यस सर। ऑल्सो आपका ऐसे बहुत शार्प एजेस नहीं है, बिकॉज शार्प एजेस आर ऑलवेज टेकिंग मोर स्ट्रेसेस, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा राउंडेड एजेस रहता है इनका, मिनिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए। ओके, देन
Turbine blade is also made of pneumonic alloy, already told you. Okay, it is a give good creep and fatigue resistance. ठीक है, locking key. Now let us come to your damping wire, lacing wire. अभी ये हर एक में नहीं होता है, ठीक है, लेसिंग वायर किसी किसी आजकल डिजाइन्स में लेसिंग वायर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज फर ट्री शेप, ये देख रहे हो फर ट्री शेप। तो इसको मैं ऊपर से तो नहीं डाल सकता, मेरे को स्लाइड करके डालना पड़ता है ना, ऐसे करके डालना पड़ता है स्लाइड करके। और ये वो पिन है, और इट इज नोन एज बल्ब, टी बल्ब, ठीक है। टी बल्ब मतलब ऐसा रहता है। तो आप इसमें देख पा रहे हो शेप, दिख रहा है ना, ठीक है। तो दीज आर रिप्लेसेबल फिन्स, अगर आप चाहो तो इसको एक को रिप्लेस करके दूसरा लगा सकते हो, ठीक है, अगर डैमेज होता है तो। इज इट क्लियर? सर टी वाल को इंसर्ट कैसे करते हैं? एक यहाँ पे ना, अगर इसको मैं निकाल दूं तो एक होल बचेगा, आप उसके अंदर इसको इंसर्ट करो बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, वो अपने आप उसको पकड़ लेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा रहता है, अभी शेप कैसे बना के दिखाऊं मैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके लॉक हो जाता है, उस पर इतना डिटेल में मत घुसो यार, ठीक है। और ये जो चीज है इसको बोलते हैं लेसिंग वायर, ठीक है। हर एक डिजाइन में नहीं है ये, ठीक है, कई शिप्स में नहीं आता है। लाइक इन माई लास्ट ट्रायल ऑफ वी ओवरऑल द टर्बो चार्जर, नॉट अस बट द आउटसाइड पीपल, बट आई सॉ देयर वाज नो लेसिंग वायर ऑन इट। ओके, क्यों होता है सर लेसिंग वायर? बता रहा हूँ, आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। सो अभी क्या है कि व्हेन इट इज रोटेटिंग एट सच हाई आरपीएम, देयर आर चांसेस ऑफ वाइब्रेशन इन योर प्लेट्स, राइट। मान लो ये तीन मैं ब्लेड बना दिए और ये लेसिंग वायर पास हो रही है, ठीक है। नाउ दिस वायर इज नॉट वेरी स्टिफ, आपके होल्स में लूजली जा रही है, मतलब इतने से पार्ट में वायर जा रही होगी, ठीक है। और आपके ब्लेड में इतना बड़ा होल है, मान लो ये ब्लेड है, इसके बीच से आपकी वायर पास हो रही है, बट इट इज स्टिल हैविंग सम क्लियरेंस, सो ये लूज रहती है वायर। सो व्हेन इट इज एक्सपीरियंसिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस वायर विल बी पुश्ड आउटवर्ड्स। बोलो, जब ये घूमेगा, so because of the centrifugal force, this wire is going to be pushed outwards, isn't it? सर And it is going to touch on top here, ठीक है। And when it is going to touch, it is going to there will be a friction between the blade and your lacing wire, and it will stop the vibration. Is it clear? Vibration को stop तो नहीं, मतलब कम कर देता है, डैम्पन करने के लिए। ठीक है, डैम्पन करता है। So lacing wires are used to dampen vibrations due to friction. Is it clear? सर But तो there ये, is a बोलो। तो सर ये जो दूसरे एंड पे होगा लेसिंग वायर, तो उसको भी सर उसी तरह आउटवर्ड इसको मूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो सर इसको एक्सपांड करना पड़ेगा लेंथ को। नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। जैसे दूसरा। आपने बताया, जैसे आपने हम्म बताया किसी ब्लेड में अगर ये होल है, तो जैसे हम्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये आउटवर्ड मतलब कि वो होगा, है ना, टच में आएगा। हम्म तो उसी तरह जो दूसरे एंड पे जो ब्लेड्स होंगे और उसमें जो लेसिंग वायर होगा, तो वो भी उसी तरह आउटवर्ड आउटवर्ड मूव करेगा। दूसरे एंड पे मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जैसे पेरीफेरी पे जो है ना सर नेक्स्ट ये ब्लेड है, मे बी सर नेक्स्ट ब्लेड जो नहीं होगा। नहीं, नेक्स्ट ब्लेड नहीं, मतलब कि जस्ट अपोजिट, अगर देखा जाए डायमीटर, अगर देखा जाए डायमीटर पे, तो दो हो जाएगा ना सर, जैसे कि मैं वो लूजली रहता है सर, बोले लूजली रहता है इसलिए लूज वो। फिट है ना, यहाँ यहाँ वाले बोल रहे हो।
ये वायर हाँ हाँ ऐसे सर, है। ओवर हाँ अपोजिट हाँ सर, बोला हाँ वो, सर, हाँ अपोजिटली। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो ये लूज फिट है ना, मैंने बोला तो ये इट इज नॉट टाइट फिट ना, लूज फिट है। तो जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी दोनों तरफ लगेगी, इजंट इट? आउटवर्ड ही लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल इनवर्ड थोड़ी लगेगी, राइट? तो आउटवर्ड ही लगेगी किसी भी पॉइंट पे। हाँ तो मतलब मैं नहीं वही समझ पूछ रहा रहे था कि सब ये, हो? हाँ तो ये जैसे जैसे एक्सपांड करेगा तो एक्सपांड करने के लिए तो इसको जो लेंथ है वो भी चेंज कर जाएगा फिर तो, ओवरऑल लेंथ, जो जो उसका सरकमफ्रेंस पे जो लेशिंग वायर का जो ओवरऑल लेंथ होगा वो भी इसको एक्सपांड करेगा फिर मतलब। नहीं, इसीलिए तो बोले ना कि वो लूजली रह जाएगा, ताकि ये ताकि लूज फिट, जब ये ताकि लूज जब फिट है। एक्सपैंड करे ना तो फिर उस साइड आउटवर्ड्स बाहर की तरफ जाए। देखो ये लूज फिट है, ठीक है, इट इज नॉट वेरी टाइट। यहाँ पे आपको फोटो में बहुत, देखो लूज फिट का मतलब ये नहीं होता कि एकदम जुड़ा हुआ है और एकदम बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको गैप ज्यादा दिखेगा भी नहीं, ठीक है, दिख रहा है गैप, नो सर। ठीक है। लेकिन हमको पढ़ाते समय आपको बताना पड़ेगा कि गैप रहता है बीच में, है ना। अगर मैं बिल्कुल ही ऐसा बना दूं तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो गैप रहता है, that gap is also catering your expansion, that gap is also when the turbine is rotating at very high rpm, it will push your this lacing wire outside, ठीक है, it will touch the top face of your hole, and उससे फ्रिक्शन की वजह से वाइब्रेशंस जो टॉप में होंगी, मैक्सिमम वाइब्रेशन तो टॉप पे रहेगी ना, बॉटम पे कम होंगी, isn't it? जो फ्री एंड है उस पर ज्यादा वाइब्रेशन होती है, तो उस वाइब्रेशन को केटर करने के लिए दिस लेसिंग वायर इज गिवन, ठीक है। यस सर। ओके। तो इसमें कंसंट जब इसमें होल कर रहे हैं ब्लेड्स में तो कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगा? होता है, ठीक है, दैट्स वाई। देखो इसके ड्रॉबैक्स ही वो थे, मैंने तभी बोला ना कि आजकल नहीं यूज करते हैं, ठीक है, लेसिंग बायस को। तो बिकॉज ऑफ द होल, किसी भी आपको ये तो पता ही है कि किसी भी चीज पे आप अगर होल करते हो तो वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। बट इट इज अ राउंड होल, राउंड होल आर कंपेरेटिवली लेस स्ट्रेस यस सर। कंसंट्रेशन एरिया, राइट, एज यस सर। कंपेयर टू द शार्पर पॉइंट्स, राइट। यस सो ये सर। राउंड होल्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या था ना लेसिंग वायर्स में, बिकॉज दिस इज अ टर्बाइन, ठीक है, एग्जॉस्ट टर्बाइन, तो एग्जॉस्ट गैस यहाँ पे स्टिक कर जाती थी, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हम्म। उसकी वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस होने का खतरा रहता था। इज इट क्लियर? यस सर। टर्बो चार्जर अनबैलेंस होने का प्रॉब्लम रहता था, दैट्स व्हाई नाउ इट इज वी आर नॉट यूजिंग लेसिंग वायर्स, ठीक है। सर इसका मटेरियल लेसिंग वायर का? लेसिंग वायर का मटेरियल आई डोंट नो यार, मेरे को नहीं मिल रहा है लेसिंग वायर का मटेरियल कहीं पे, ठीक है। ओके सर। फंक्शन नहीं पता चल रहा है और मटेरियल नहीं मिल रहा है यार मेरे को। ओके सर। हाँ। और इसके पहले एक, मतलब अच्छा बेसिकली मैं, जो एक्सेस वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकता है टर्बोचार्जर में, उसको डैम्पेन करने के लिए लाइटिंग वायर यूज करते हैं, तो एक साथ मतलब ब्लेड्स कनेक्टेड रहे वाइब्रेशन को कम करने के लिए, है ना। अच्छा ओके। अभी देखो जैसे मान लो मैं एक ब्लेड ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक ब्लेड ऐसे बना देता हूँ। इससे पहले एक और डिजाइन होता था, उसमें एक और चीज आती थी, वो भी कई बार पूछ सकते हैं आप लोगों से। ये मान लो लेसिंग वायर जा रही है मेरी, ठीक है, ये ब्लेड्स हैं पर्पल वाले, और ये लेसिंग वायर जा रही है। तो लेसिंग वायर का तो आपको फंक्शन पता चल गया, राइट। नाउ देयर वाज वन मोर थिंग दैट वाज कम, जो मतलब पुराने टाइम पे था, ठीक है। आई विल यूज ग्रीन कलर, जो कि ऐसे ब्लेड्स के थ्रू एंड थ्रू जाती थी, ठीक है। और इसको हम बोलते थे बाइंडिंग वायर। सुना ये नाम? नो नो सर। सर। ठीक है। एक मिनट रुको यार, थोड़ा पानी पी लो।
लेसिंग वायर इज कंप्लीट नाउ। लेसिंग वायर में एक और चीज, दीज होल्स, ठीक है, जो कि आपके टरबाइन में है, दीज आर एट एंटी नोडल पॉइंट्स। एंटी नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं? लेस स्ट्रेस के पॉइंट्स। लेस, जहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम हो, राइट? यस सर। ये होती है आपकी एम्पलीट्यूड। तो जहां पे एम्पलीट्यूड कम होता है वहां पे होता है, ठीक है। ये वाइब्रेशन टॉपिक हुआ है आपका अभी तक? अटेंड नहीं किया सर, वाइब्रेशन, लेट ज्वाइन किया जहां मैंने। पे, बस इतना याद रखो, एंटी नोडल, और कहाँ पे मैंने बोला था आपको, टर्बो, ये थ्रस्ट ब्लॉक के टाइम पे बोला था, राइट? याद है ना? यस जहां सर। पे वाइब्रेशन सबसे कम रहते हैं उसको बोलते हैं एंटी नोडल पॉइंट, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज नोन एज बाइंडिंग वायर। रिसेंटली अभी क्लास 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाइंडिंग वायर कहाँ है, क्योंकि ये आजकल क्या बहुत टाइम पहले से ही जा चुकी हैं, ठीक है। एंड कोई बोलता भी नहीं है अभी, पढ़ाता भी नहीं एक्चुअली। सो बाइंडिंग वायर्स आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन द, ट्रेलिंग एजेस, ठीक है, ऑफ योर टरबाइन ब्लेड्स। इसका कोई फोटो नहीं मिल रहा मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट ये पूछा गया था, तो इन क्लास 2 पूछा गया था, तो आई विल टेल यू दिस थिंग। देन कम्स योर द शाफ्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो शाफ्ट इज, और योर टरबाइन इज, टरबाइन डिस्क। सर वो एक बार दिखाइए बाइंडिंग वायर वाला। सर ये लेसिंग वायर ही बाइंडिंग वायर होता था पहले। नहीं नहीं, लेसिंग वायर अलग है, बाइंडिंग वायर अलग अच्छा। बाइंडिंग वायर है। अभी वीक नहीं हुक यूज होता है। करते, अभी नहीं यूज करते, मैं बोला ना। और सर ऊपर अगर उठाइए। सोचा कि बाइंडिंग वायर क्या होता है तो फिर क्या बोलना रहेगा? These wires were used to strengthen the trailing edges of the turbine blades, ठीक है। ट्रेलिंग एज मतलब सर? ट्रेलिंग एज मतलब कि जो एंड लूज है, ठीक है, ये एंड लूज है। मान लो यहाँ पे वो टरबाइन ब्लेड से लगा हुआ है, ये टरबाइन व्हील से लगे हुए हैं ये चीजें, ये एंड लूज वाला एंड है, ठीक है, ये लूज एंड है। तो ये लूज एंड को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। ये अगर, अच्छा, आप, मैंने थोड़ा सा उल्टा सा डायग्राम आपको लग रहा होगा, ये मान लो ये आपका व्हील है, ठीक है, और ये ब्लेड्स है। अभी समझ गए? ये आ गया लेसिंग वायर, और ये आ गया बाइंडिंग वायर। ट्रेलिंग एजेस मतलब जो लूज एजेस हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे बना देता हूँ, ऐसे मान लो ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये जा रही है आपकी लेसिंग वायर, और ये जा रहा है आपका बाइंडिंग वायर। अभी समझ आ गई क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर। ठीक ठीक। ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड लिटिल बिट? सर तो अल्टरनेटिवली होगा, फिर एक ब्लेड के ऊपर से जा रहा है फिर नीचे से ऐसे। नहीं, अभी डायग्राम पे नहीं बना पाया मैं, वैसे दोनों पे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अच्छा। इजंट इट? इस पे नहीं बना पाया वैसे मैं, बट यहाँ पे अच्छा, बनाया हुआ है ना। समझ गया ऐसे करके, हम्म। ठीक है सर। देन टरबाइन इज, टरबाइन डिस्क इज फ्रिक्शन वेल्डेड टू रोटर, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो शाफ्ट के साथ लगी हुई ही आती है आपकी टरबाइन डिस्क, इसके बीच में जो वेल्डिंग होती है दैट इज नोन एज फ्रिक्शन वेल्डिंग। देन कम्स योर, आई डिस्कस प्रॉब्लम विद माई लेसिंग वायर, राइट, कि उसमें कार्बन डिपोजिशन हो जाता था, और है ना। ओके, टरबाइन केसिंग, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। और इसमें भी दो डिजाइन आते थे, कूल्ड, एंड नाउ इट इज वी यूज्ड अनकूल्ड। कूल्ड में क्या होता था, प्रॉब्लम ऑफ
कूल्ड में आपकी वाटर जैकेट रहती थी, पानी इंजेक्ट किया जाता था कूलिंग के लिए, राइट। और आजकल के टर्बो चार्जर्स में कूलिंग नहीं रहती है, ठीक है, अनकूल्ड टर्बो चार्जर्स रहते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे आउटबोर्ड बेयरिंग्स यूज होती थी वहां पे आपको वाटर जैकेट चाहिए, बिकॉज आपको लूब ऑयल को ठंडा करना है, इजंट इट। टर्बो चार्जर के साइड्स में ही आपके लूब ऑयल के टैंक है दोनों, राइट, आउटबोर्ड बेयरिंग में। बोलो गाइस, दोनों के सम्प अलग से है ना आउटबोर्ड बेयरिंग में, यस सर। ठीक है। तो उसको ठंडा करने के लिए हमें एक वाटर जैकेट चाहिए होती थी। तो ये आपका फ्रेश वाटर कूल्ड रहता था सिस्टम, ठीक है। बट फ्रेश वाटर कूलिंग से प्रॉब्लम क्या होती है केसिंग की, कि करोजन के चांसेस होते हैं, ऑल्सो चांसेस ऑफ हॉट करोजन। व्हाट इज हॉट करोजन? या बोलो गाइस, हॉट करोजन क्या है, कहाँ पे हो सकते हैं? एग्जॉस्ट वॉल किसने पढ़ा मेरे से? मैंने पढ़ा सर। हाँ बोलो, हॉट करोजन बोलो फिर। सर हॉट क्लोरीन तो वो होता है ना जिसमें सोडियम और वेनेडियम का जो रेशियो है 1:3 में आता है, तो जो भी कार्बन सॉरी सॉरी डिपॉजिट। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, कोल्ड करोजन, कोल्ड करोजन बोलो, गलती होगी। कोल्ड करोजन, कोल्ड करोजन भी पढ़ाया हुआ है ना। यस सर। सर कोल्ड बोलो। क्रोजन तो सर उसमें H2SO4 और HCl का फॉर्मेशन होता है। और सर ओके अच्छे से रिकॉल सो, नहीं कर पा रहा सर। कोई बात नहीं, कोई बात, चलो पहुंचे एटलीस्ट वहां तक आप, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट ऑफ कंबशन क्या है? यार आज मैं कर नहीं पाऊंगा कंप्लीट ये, चलो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन क्या होता है? फ्यूल। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इज हीट, CO2, सॉक्स, नॉक्स, ठीक है, एंड वाटर वेपर्स, ठीक है, एंड सो ये सब प्रोड्यूस हो रहा होता है जब आपका फायर होता है इंजन में, यस सर। ठीक है। तो कोल्ड करोशन में क्या होता है कि मान लो, एक्चुअली हम ये बोलते हैं लाइनर्स के लिए, राइट, ये टर्म्स नॉर्मली हम लाइनर्स के लिए यूज की जाती हैं, और इसी के लिए आजकल लाइनर्स ओनली आपका टॉप पार्ट में कूल रहते हैं, बॉटम पार्ट में लाइनर की जैकेट भी नहीं होती है, राइट। ये सब पड़ा होगा इंजन की कंस्ट्रक्शन यस में। सर। तो यस सर। प्रॉब्लम क्या होता था कि आप जब वाटर देते थे तो ये पोर्शन ज़्यादा ठंडा रहेगा एज कम्पेयर टू द टॉप पोर्शन, ठीक है, क्योंकि टॉप पोर्शन में तो कंबशन भी हो रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा हॉटर रहता था, बट नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है वो कोल्डर रहेगा रीजन, राइट। एंड व्हेन योर मेन इंजन इज टॉप, आपका ऐसा है नहीं कि सब कुछ चला जाता है अंदर से, देयर इज सम अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट विच इज स्टिल रिमेनिंग इनसाइड, ठीक है, इफ यू आर नॉट ब्लोइंग थ्रू आफ्टर योर इंजन हैज बीन स्टॉप्ड, विच इज हैपनिंग मोस्टली ऑन योर कंटेनर वेसल्स, नहीं करना देते हैं वो लोग, ठीक है, ब्लो थ्रू। सो क्या होगा कि ये जो आपका सॉक्स एंड नॉक्स है, ठीक है, तो SO2 और O2 मिलके, थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, एयर है तो, ठीक है, मिलके SO3 बनाता है, विच इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। SO3 प्लस वाटर के वेपर्स जो कि हैं प्रेजेंट, ये बनाता है आपका H2SO4, ठीक है। इवन इन रनिंग कंडीशन दिस H2SO4 इज फॉर्मिंग, बट इट इज फॉर्मिंग इन वेपर स्टेट, ठीक है। बट इफ केस इन केस आपका लाइनर का टेम्परेचर इस H2SO4 के ड्यू टेम्परेचर से कम हो जाए, H2SO का ड्यू टेम्परेचर रहता है 163 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पहुंच जाए, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो होता है जब ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा वेपर, ठीक है। यस सर। तो अगर ये टेम्परेचर आपका लाइनर का जैकेट का टेम्परेचर इस टेम्परेचर के अराउंड आ जाए, तो व्हाट विल हैपन, H2SO4 विल बिकम liquid, and this liquid H2SO4 is highly corrosive, right? यस सर, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सेम चीज टर्बोचार्जर में भी हो रही है। इफ, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस तो उधर भी जा रही है, इजंट इट, टर्बोचार्जर में। और अगर आपकी कूल्ड जैकेट है, वाटर कूल्ड जैकेट है, ठीक है, तो अगर वाटर जैकेट का जो टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के अराउंड आ जाता है, ठीक है, इन एनी केस, ठीक है, जो कुछ तो रीजन होगा जहाँ पे कोल्ड रहेगी टरबाइन का एरिया, आपका टर्बोचार्जर का एरिया, ठीक है, वहां पे जाके ये H2SO4 के वेपर आपके लिक्विफाई हो जाते हैं, एंड देन दैट विल लीड टू योर कोल्ड करोजन इन योर केसिंग,
ठीक है, दैट इज वेरी वेरी मेजर ड्रॉबैक। इसलिए ऑल्सो वन मोर मेजर ड्रॉबैक इज आपकी वेस्ट हीट रिकवरी आपने तो पानी में डाल दी, यस सर। लॉस ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, बिकॉज इसके बाद तो उसने वहां पे भी जाना था ना, बॉयलर पे, है ना। तो अनकूल्ड वाले में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, ठीक है। ओके, टरबाइन केसिंग आपको समझ आ गया कास्ट आयरन की। देन विल कम टू योर कंप्रेसर इम्पेलर, दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय, ठीक है, लाइट वेट रहते हैं। सर टरबाइन डिस्क का मटेरियल क्या है? टरबाइन डिस्क का निमोनिक, डिस्क का कि हाँ, टरबाइन का? डिस्क डिस्क टरबाइन डिस्क। टरबाइन डिस्क, लेट मी चेक। हाँ, टरबाइन डिस्क, ये सब याद नहीं रहते यार चीजें, चलो मैं देखता हूँ बाद में। टरबाइन ब्लेड्स का बताया ना निमोनिक अलॉय, है ना, इसका देख लूंगा बाद में। लैसिंग वायर भी कंप्रेस, सेम ही होता है क्या सर, कंपोनेंट? क्या चीज? लैसिंग वायर का मटेरियल। लेसिंग वायर का आई एम टोल्ड यू ना, मेरे को मटेरियल नहीं मिला उसका यार, ठीक है। ओके ओके। लेसिंग वायर का मटेरियल, ओके। देन एल्युमिनियम और एलोय। एल्युमिनियम अलॉय, एल्युमिनियम अलॉय एक ही वर्ड है, शॉर्ट में लिखा है एल्युमिनियम अलॉय, क्योंकि वो हल्का रहना चाहिए, ठीक है। These shroud rings are normally made up of see different manufacturers will use different things, but normally it is made up of stainless steel. Huh? Then comes your important thing, that is your mist catcher। वैसे मिस्ट कैचर कहाँ होता है? कंप्रेसर में सर। मिस्ट कैचर कहाँ होता है? कंप्रेसर में, एयर कूलर के बाद। एयर कूलर के बाद, राइट। एयर कूलर के टॉपिक में एक्चुअली लेना चाहिए मेरे को, चलो अब बता ही देते हैं यहाँ पे। तो मिस्ट कैचर फंक्शन कैसे करता है वो बता देता हूँ आपको, है ना, जनरल साइक, वी हैव 2-3 मिनट्स। तो फंडा क्या होता है कि आपका जो एयर है ना, दैट इज मूविंग थ्रू दिस चैनल्स लाइक दिस, ठीक है। और आपका एयर इसके बीच से जा रहा होता है, ठीक है, आफ्टर योर एयर कूलर। हाँ, ये आफ्टर एयर कूलर। अभी क्या है कि एयर, ठीक है, एयर कैन चेंज इट्स डायरेक्शन रैपिडली, ओके, वेरी गुड, बट वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट चेंज अ रैपिड चेंज इन डायरेक्शन। तो वो क्या करते हैं, दोज पार्टिकल्स विल stick here, and then because of Newton Baba, gravity will come into action and it will drop down, ठीक है। सो रैपिड चेंज इन डायरेक्शन की जाती है एयर की, इसका जो प्रिंसिपल है वर्किंग, ठीक है। रैपिड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एयर will lead to removal of water from air। सर समझ नहीं आया सर, एक बार। कोई भी अगर आप हवा को जब टर्बोचार्जर से भेज रहे हो एयर कूलर पे, ठीक है, तो एयर कूलर के वहां एयर कूलर में ही एक आपका लगा रहता है, दैट इज योर मिस्ट कैचर, है ना। उसका काम ये है कि पानी निकालना आपके हवा से, आपकी हवा में मॉइस्चर रहता है ना, उसको निकालने के लिए, ठीक है।
तो आप क्या करते हो, रैपिड चेंज इन एयर फ्लो करते हो, ठीक है। एयर ऐसे आएगी और यहाँ पे मल्टीपल फिन्स रहती हैं, ठीक है, ये फिन फिन ट्यूब्स रहती हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एयर कैन चेंज इट्स डायरेक्शन वेरी रैपिडली बट नॉट वाटर। वाटर को थोड़ा एज कंपेयर टू एयर इट विल टेक टाइम, ठीक है। और वो जब इन फिन से टकराती हैं, आपका वाटर जो इन फिन से टकराएगा, ठीक है, वाटर पार्टिकल जो भी एयर में होगा वो फिन से टकरा के नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा और नीचे ट्रे रहती है, वहां से वो ड्रेन कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? यस कि सर। नहीं तो एयर, हाँ, एयर कूलर वाले टॉपिक में अलग से बता भी दूंगा, ठीक है। फिर ये कहाँ पे ड्रेन होता है, कूल ड्रेन टैंक? दिस इज गोइंग टू योर क्लीन ड्रेन टैंक और सम इन सम शिप इट इज गोइंग टू बिल्जेस आल्सो, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन योर शिप। नॉर्मली क्लीन ड्रेन टैंक रहता है, ठीक है। आपके शिप में आप उसको किस टैंक से नाम से बोलते थे आई डोंट नो, बट लास्ट शिप में क्लीन ड्रेन टैंक में जाता था। उससे पहले वाले शिप में इट यूज टू गो टू बिल्जेस, ठीक है, बिकॉज इट इज व्हाट वाटर, डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है।